तो वेट कर लो 2 मिनट, अभी स्टार्ट हो जाएगा। मैम हो गई स्टार्ट। मैम हो गई, गुड मैम हो गई। इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? We are fine, ma'am. How are you? फाइन बच्चों। तो बच्चों ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो आप लोग जो है कोविड-19 से सेफ रहने के लिए मास्क पहन के बाहर जाना है, बार बार हाथ धोना है, ये सारे काम आप करेंगे, है ना। इसकी वजह से यहाँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना। तो बच्चों मैं आपसे जो है आज ये क्लास जो चल रही है इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछने वाली हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देन हैव यू सीन एनी माउंटेन, प्लेन्स, रिवर्स? हैव यू सीन? यस मैम, यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी आप प्रेजेंटली कहाँ रह रहे हैं? उत्तराखंड स्टेट में, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. In the Uttarakhand state, which type of features found? Which type of features found? किस तरीके के फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं? Ma'am, माउंटेन, Rivers. माउंटेन ठीक है। देन इस सभी फीचर्स को माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, दैट्स ऑल आर कॉल्ड द फिजिकल फीचर्स। देन टुडे we will study about the physical features of India. Now I am presenting the screen is sharing. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Then physical features of India. Then major geographic division of India is the Himalaya mountain, the northern plain, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plain, the island. Basically, today we will study about the Himalaya mountain. Himalaya mountains are stretches over the northern border of India. आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि हिमालय माउंटेन जो है नॉर्दर्न बॉर्डर पे इंडिया के। यस मैम। This mountain range run in the west-east direction from the Indus to Brahmaputra. What do you mean by Indus and Brahmaputra? मैम What these is are it? मैम रिवर्स। These are rivers, है ना? These are two major river system of India, है ना? Got it? Then Himalaya ranges stretches over direction of west to east from the Indus to Brahmaputra. The Himalayas form an arc. एक आर्क की तरह है बच्चों ये बना हुआ, which covers a distance of about 2,400 kilometers. Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal Pradesh. Then इसकी width जो है वो वेरिश करती है। इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ पे है? कश्मीर में है 400 किलोमीटर एंड 150 किलोमीटर है। सबसे नैरो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है बच्चों। यस मैम। हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस है इसमें। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। लॉन्गिट्यूड पता है आप लोगों को? व्हाट डू मीन बाय लॉन्गिट्यूड?
लॉन्गिट्यूड क्या है पता है? It is an imaginary line, na, which drawn east to west direction and make a full circle. That is called a longitude. India extend 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतनी है बच्चों, ठीक है। लेकिन जो हमारे हिमालय रेंज है बेसिकली नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है, तो इसी वजह से इसको बोल रहे हैं कि पैरेलल रेंजेस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के रूप में हम जो है उसका डिवीजन करेंगे, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट जो इसकी रेंज है दैट इज नोन एज ए हिमाद्री. It consists of average height of 6,000 meters. Okay. Yes, The ma'am. folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. Basically, this part of Himalayas formed by granite rocks, and many number of glaciers founded here. Many of highest prominent peaks situated in that part of Himalayas. Got it? Yes, ma'am. बहुत सारे जो बड़े बड़े हाईएस्ट पीक्स हैं वो सारे इसी में हैं. Like Mount Everest, which is situated in Nepal, height in meters 8848 meters. Kanchenjunga, situated in India, its height 8598 meters. Makalu in Nepal, Dhaulagiri in Nepal, Naga Parvat in India, Annapurna in Nepal, Nanda Devi in India, Kamet in India, Namcha Varwa in India, Burla Mahadatta in Nepal. तो बच्चों समझ में आ गया. अब आप मुझे बताएंगे विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड इन हिमालय. Yes. Ma'am, Mount Everest. Mount Everest. Mount Everest. ठीक है बच्चों. विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन हिमालय. Ma'am, Kanchenjunga. कंचनजंगा. बच्चों हम इस मैप की सहायता से और भी कुछ समझ सकते हैं. इस मैप की सहायता से जैसे अभी जो है ग्रेट हिमालय की बात की हमने, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रेट हिमालय है, पूरा फैला हुआ है, ठीक है. माउंट एवरेस्ट है जो कहाँ है. माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन विच कंट्री. Nepal. नेपाल. आप माउंट एवरेस्ट की भी सिचुएशन देख सकते हैं, वो नेपाल में है. कंचनजंगा कहाँ है, सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. मैम सिक्किम. मैम सिक्किम में देख सकते हैं आप. और ग्रेट हिमालय का जो फैलाव है, एक्सटेंट है, स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर, पूरा ये नॉर्दर्न पार्ट को कवर करता हुआ ये एक आग की तरफ फैला हुआ है. देन कहाँ तक, टिल अरुणाचल प्रदेश. समझ में आया. तो हमने ग्रेट हिमालय देख लिया. Yes, ma'am. ठीक है बच्चों. Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं और भी जो हम बता रही थी मैं कि 3 जो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. देन नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड, बताओ. Himachal. Himadri. Very good, Himadri. Then which range lying to the south of the Himadri called लेसर हिमालय और हिमाचल. ठीक है. जो भी पार्ट हिमाद्री से साउथ में है और बिल्कुल मोस्ट रस्ट माउंटेन सिस्टम है, दैट इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय. ओके. The range are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3,700 and
500 meters and the average width is of 50 kilometer. Got it बच्चों? Altitude Yes, इसकी ma'am. वैरीज करती है, इट मीन्स इसकी हाइट वैरीज करती है इसके बिटवीन में 3700 से 4500 मीटर्स के बीच। ये 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है। Then पीर पांचाल रेंज forms the longest and the most important range. पीर पांचाल इसकी बहुत ही important range है। धौलाधार and the महाभारत range are also prominent ones. Okay? समझ गए आप लोग? Yes, ma'am. बच्चों आउटर मोस्ट रेंज हिमालय की है वह हिमालय इज कॉल्ड अ शिवालिक। आउटर मोस्ट रेंज को शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, इट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द हिमाचल और लेसर हिमालय। समझ में आ गया? किसके साउथ में है? लेसर और हिमाचल हिमालय के साउथ में है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ आउटर मोस्ट हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक। इसकी विड्थ कितनी है? एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located further north. These valleys are covered with thick gravel alluvium. ये पूरी की वैली जो है alluvial gravel से covered है। The longitudinal valley laying between Lesser Himalaya and Shivaliks are known as dunes. For example, Dehradun, Kotli Dune and Patli Dune are some of the well-known dunes. समझ गए आप? Yes, ma'am. शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो भी वैली है उस वैली को बोलते हैं देहरादून। देहरादून में तो आप रहते ही हैं, पता है आप सबको। कोटली दून और पाटली दून भी है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया है सबको अच्छे से? Yes, ma'am. अब हिमालय का जो हम डिवीजन करेंगे बच्चों, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो हमने जो है अभी जो आपको शिवालिक और लेसर हिमालय की बात करी मैंने, उसकी भी एक जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक पिक्चर कि वो कहाँ पे है। ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ मैप दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ देखिए ये ग्रेटर हिमालय है, फिर यहाँ पे शिवालिक हिमालय इस तरफ को, ठीक है ना। बीच में क्या है? पीर पांचाल और वो लेसर हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय से जो ये इस तरफ को है, साउथ की तरफ जो आप देख रहे हैं लाइंस खींची हुई है ना, वो रेड Yes, से ma'am. दिखाई दे रही है, वो क्या है? हमारी हिमाचल और लेसर हिमालय। देन लेसर हिमालय के साउथ में ये शिवालिक रेंज है। ठीक है, तो ये सब कुछ दिख गया है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे हिमालय का डिवीजन अनदर बेस पे। कौन सा बेस है? बेसिस ऑफ द रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो है रीजन्स है, उससे हम इसका डिवीजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिवर, ये जो डिवीजन है बच्चों अकॉर्डिंग टू रिवर है। द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. बच्चों जो भी पार्ट इंडस और सतलज के बीच में है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं, बट इसे और भी नाम से जानते हैं। रीजनली नेम है इसके कश्मीर हिमाचल हिमालय। ठीक है, which part of Himalaya situated between Satluj and Kali rivers is known as Kumaon Himalaya. जो पार्ट सतलज और काली रिवर के बीच में है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। Which part situated between काली and तीस्ता rivers called नेपाल हिमालय। जो पार्ट काली और तीस्ता रिवर के बीच में है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। Which part situated तीस्ता between तीस्ता and दिहांग rivers is known as असम हिमालय। तो ये समझ में आ गया आपको? जो पार्ट तीस्ता और दिहांग के बीच में होगा उसको असम हिमालय बोलेंगे। ठीक है, then according to rivers, then Himalaya divided into 4 parts.
ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया है। तो एक और चीज जान लो कि पूर्वांचल हिमालय के बारे में। विच पार्ट इज नोन ऑफ पूर्वांचल हिमालय? विच पार्ट सिचुएटेड eastern on the easternmost boundary of the Himalayas? Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas, and the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India. That is known as Purvanchal or the eastern hills and mountains. जो पार्ट बच्चों क्या होता है हिमालय का, वो ब्रह्मपुत्र रिवर मार्क करती है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को हिमालय की। दिहांग गॉड से क्या होता है कि ये हिमालय जो है बेंड हो जाती है साउथ की तरफ और ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है इंडिया की, तो उसको बोलते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। These hills are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rock. ये सारा हिल किससे बना हुआ है? सैंडस्टोन से बना हुआ है जो सेडिमेंट्री रॉक है। आप जानते हैं ना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स? मैम 3। मैम 3। ठीक है, तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक जो है कौन कौन से टाइप हैं आप बताइए? मैम यस मैम इग्नियस रॉक, मैम इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। मेटाफोर रॉक और ठीक है मैम बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो आपको पता हो गया इग्नियस है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक है, तो इसमें सैंडस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो पूर्वांचल हिल्स है, उसको अलग अलग जो है वो नाम से जानते हैं जगह जगह, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये बच्चों ये जिस भी स्टेट में है उसके नाम पर बेसिकली इसका नाम रखा गया है। तो आपको इस मैप दिखा देती हूँ मैं। देखो आप मैप यहाँ देख रहे हैं, पा रहे हैं ना? ये मैप है ना? यहाँ नमचा बरुआ दिख रहा है आपको सबको? अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरुआ लिखा हुआ है, ठीक है? दिख रहा है बच्चों? यस और नो? यस मैम। कहाँ से देखिए ये बेंड हो रहा है, ये पटकाई बूम, ठीक है, जो मणिपुर में भाग है इसका पूर्वांचल हिमालय का, उसको पटकाई बूम कहते हैं। नागा हिल्स नागालैंड और मिजो हिल्स जो है वो मिजोरम में। ठीक है, तो इस तरीके से इसके उसके स्टेट के ऊपर इसका नाम रखा गया है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ। The northernmost range of the Himalayas is known as मैम हिमाद्री। Himadri. Very good. Name the some regional names of the Himalayas. रीजनल नेम्स बोलिए हिमालयस का। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय बताया था। मैम आसाम हिमालय। असम हिमालय, हिमाचल हिमालय, नेपाल हिमालय, है ना? गुड। यस मैम। The middle Himalaya is well known for its hill station. Name some of them. मिडिल हिमालय के जो हिल स्टेशन है उसके नाम बता दीजिए एक दो। एक तो हमारे यही है उत्तराखंड में, देहरादून के पास कौन सा है हिल स्टेशन? बोलो बोलो बच्चों। यहाँ से 27 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं तो वो है, बोलो। मैम मसूरी। हाँ मसूरी, वेरी गुड। ठीक है, और इसमें शिमला भी आएंगे, ठीक है, शिमला भी है, रानीखेत, ये सारे आएंगे इसमें मिडिल हिमालय में। ठीक है, व्हाट आर द लेसर हिमालयस नोन एज? मैम शिवलिक। शिवालिक नहीं, लेसर हिमालय को शिवालिक नहीं बोलते बेटा। हिमाचल हिमालय है ना, शिवालिक को आउटर हिमालय बोलते हैं। The longitudinal valleys laying between lesser Himalaya and Shivalik are known as, क्या बोलेंगे इसको? जो वैलीज किसके बीच में है, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? मैम दून्स।
हाँ, दुन्स, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय? मैम माउंट माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। क्या? मैम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। हाँ, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया? मैम कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये पहले भी पूछा था मैंने आपसे। अब देखो ये कुछ पिक्स है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ देखो ये कौन सी पिक है? ये जम्मू मैम कश्मीर लद्दाख में है, K2, हाँ K2 है ये। यहाँ पे देखिए ये सिक्किम में मैम कंचनजंगा। कंचनजंगा है, ठीक है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा, ठीक है। तो Yes, बच्चों ma'am. ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।